آیت اللہ خامنائی کا سفر آخرت 6 روزہ تعزیتی تقریبات آج شروع ہوں گی۔ پاکستان ایران کے غم میں برابر شریک۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی تہران میں امام خمینی حسینیہ سینٹر آمد۔ اسحاق ڈار، ایاز صادق، محسن نقوی، بلاول بھٹو، عطا اللہ تارڑ اور وفد کے دیگر ارکان بھی ہمراہ تھے۔ وزیر اعظم کا شہید رہبر اعلیٰ کی گراں قدر خدمات کو خراج عقیدت، درجات کی بلندی کے لیے دعا۔ آیت اللہ خامنائی نے کئی دہائیوں تک غیر معمولی بصیرت سے اپنی قوم کی رہنمائی کی۔ شہباز شریف کا مشتبہ خامنائی، صدر مسعود پزشکیان اور ایرانی عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار۔ تاثرات بھی قلم بند کیے۔ سید عاصم منیر کی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی، وزیر دفاع مجید ابن رضا سے ملاقات۔ ایران کے شہید رہبر اعلیٰ کا آخری دیدار جسد خاکی امام خمینی حسینیہ سینٹر میں رکھ دیا گیا۔ شہید کی اہلیہ، داماد اور بہو کے جسد خاکی بھی موجود۔ ننھی نواسی کا تابوت دیکھ کر ہر آنکھ اشکبار۔ رکت آمیز مناظر، عوام کا ہجوم خراج عقیدت پیش کرنے پہنچ گیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان، اسپیکر باقر کالباف اور دیگر اعلیٰ قیادت کی بھی آمد۔ سعودی نائب وزیر خارجہ کی قیادت میں وفد کا ایرانی حکام سے اظہار تعزیت۔ تعزیتی تقریبات میں 30 ممالک کے سربراہان یا نمائندوں کی شرکت متوقع۔ آیت اللہ خامنائی کا جسد خاکی 7 جولائی کو قم منتقل کیا جائے گا۔ 8 جولائی کو نجف اور کربلا میں تقریبات شیڈیول۔ 9 جولائی کو مشہد میں تدفین ہوگی۔ سپریم لیڈر مشتبہ خامنائی سیکیورٹی وجوہات کے باعث والد کی تعزیتی تقریبات میں شریک نہیں ہوں گے۔ پاسداران انقلاب کے سربراہ بریگیڈیئر جنرل احمد وحدی کئی ماہ بعد منظر عام پر آ گئے۔ وزیر اعظم ایران کے بعد سرکاری دورے پر ترکی پہنچ گئے۔ استنبول میں ترک وزیر تجارت پروفیسر ڈاکٹر عمر بولات نے استقبال کیا۔ شہباز شریف صدر ترکی رجب طیب ایردوان سے ملاقات اور بزنس کانفرنس سے خطاب کریں گے۔ اونٹ کے منہ میں زیرہ، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں معمولی کمی۔ فی لیٹر نرخ 1 روپیہ 97 پیسے کم کر دیے گئے۔ نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا۔ بڑا ریلیف نہ ملنے پر عوام مایوس۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس سمیت کئی اہم سیاسی شخصیات استحکام پاکستان پارٹی میں شامل۔ سابق وزیر نثار انصر عبدالی، چودھری علی شان سونی، سردار امتیاز شاہین، سردار افتخار رشید، چودھری محمود، چودھری قیصر، ظہیر علی اور تقدیس گیلانی سمیت دیگر اہم شخصیات IPP کا حصہ بن گئی۔ اسلام آباد میں تقریب کے دوران صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان نے شامل ہونے والوں کو خوش آمدید کہا۔ آزاد کشمیر پاکستان کا دل اور شہ رگ ہے۔ حکومت بنانے کا موقع ملا تو خطے کو مزید خوبصورت بنائیں گے۔ صدر IPP عبدالعلیم خان کی نیوز کانفرنس، کہا ماضی میں سیاسی جماعتیں ریاست میں اپنے منشور پر عمل نہیں کر سکی، سب باری باری اقتدار کے مزے لیتے رہے، وعدے پورے کیوں نہیں کیے؟ عوام ان سے سوال کریں۔ نوجوانوں کے لیے روزگار کا بندوبست استحکام پاکستان پارٹی کا بنیادی منشور ہے۔ آزاد کشمیر پاکستان کا دل ہے۔ حضرت قائد اعظم نے کہا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر اللہ نے ہمیں موقع دیا، یہ جو خوبصورت کشمیر ہے، اس کا ایک خوبصورت ڈیولپڈ ایریا کے طور پہ بھی انشاءاللہ پیش کریں گے۔ جتنی بھی پارٹیاں برسر اقتدار رہیں، وہ اپنے منشور پہ عمل نہیں کروا سکی۔ استحکام پاکستان پارٹی اقتدار میں آ کے سب سے پہلے اپنے ایک نوجوان کے روزگار کا بندوبست کرے۔ جنہوں نے 30 سال سکھر موٹر وے نہیں بنائی، وہ میرے سے سوال پوچھ رہے آپ کب بنا۔ میں نے ان کو کہا کہ بھائی میں آپ لوگوں کو معاف کرتا ہوں، اللہ کرے آپ کو عوام بھی معاف کر دیں۔ 1997 میں بنی تھی یہ لاہور اسلام آباد موٹر وے۔ آج تک کون سی حکومت رہی اور کون سی اس میں سے باہر ہے؟ ذرا وہ اپنا حساب تو دے دیں۔ جو 3 دفعہ 4 دفعہ بنے ہیں، وہ بھی مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کب بنائیں گے موٹر وے۔ اسی سال انشاءاللہ تعالی وہ موٹر وے شروع ہوگی۔ سکھر حیدرآباد موٹر وے اسی سال شروع ہوگی۔ 30 سال سے یہ موٹر وے نہ بنائے اور 3 بار حکومت میں آنے والے بھی سوال پوچھ رہے ہیں۔ عبدالعلیم خان کی نیوز کانفرنس، کہا سکھر حیدرآباد موٹر وے کو کراچی پورٹ سے لے کر پورے پاکستان سے منسلک کیا جائے گا۔ لاہور سیالکوٹ کھاریا موٹر وے بھی 6 لین بنائیں گے۔ ذرا سی غفلت 40 جانیں لے گئی۔
खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के सरहदी इलाके दाना सर में मुसाफिरों और ड्राइवर की तकरार के दौरान बस खाई में जा गिरी। जान बहक होने वालों में खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद भी शामिल। 8 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। बदकिस्मत बस क्वेटा से पेशावर जा रही थी। रास्ते में खराब होने वाली दूसरी गाड़ी के मुसाफिर भी उसी में सवार थे। वज़ीर आला बलूचिस्तान का अलमनाक वाक़े पर गहरे दुख का इजहार। मुतासरा खानदानों की हर मुमकिन मुआवनत की हिदायत। डीजल के मामले पर तल्ख कलामी हुई। बस ड्राइवर ने मुसाफिरों को जान से मारने की धमकी दी। जिंदा बचने वालों ने सारी कहानी बता दी। उधर से भी ड्राइवर का रवैया सवारियों के साथ सही नहीं था। 3 आदमी था, वो उठ गया। बस वाले को बोला था कि भाई तुमने तो इधर गाड़ी से हमको उतारेगा लेकिन पेशावर में फिर देखेगा हम। ड्राइवर हजरात ने फिर इस तरह बात किया था कि तुमको पेशावर में जिंदा पहुंचाऊं तो फिर पेशावर में तुम हमारे साथ देखोगे। ड्राइवर के साथ इस लोगों ने मारी करके तो जानबूझ के इस तरह करके नीचे गिराया। सानिहा कहना मरियम नवाज गमजदा खानदानों को दिलासा देने पहुंच गए। गम से निढाल माओ को गले लगाया। आपका दुख बहुत बड़ा और अल्फाज इंतहाई छोटे हैं, आंसुओं का कोई मदावा नहीं। वज़ीर आला पंजाब की गुफ्तगू। कहा वालिदैन बच्चों को किसी ऐसी जगह ना भिजवाएं जहां हिफाजती इकदामात नाकाफी हों। पैगाम अमन कमेटी इजलास से खिताब पे मरियम नवाज बोली सरगोधा में बच्ची से ज्यादती और कत्ल का वाकया दिलखराश है। बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत और वालिदैन की मुश्तरका जिम्मेदारी करार। इंसिडेंट्स के अंदर समा की टीम ने ग्राउंड से जो हमें रिपोर्टिंग दी, तकरीबन 7 घंटे तक कॉन्स्टेंटली हम समा की टीम से राब्ते में रहे हैं। और ना सिर्फ इस इशू पे, इससे पहले काना वाले इशू पे, उससे पहले समर कैंप्स के इशू पे। सानहा कहना और बागबानपुरा के हक़ाइक़ सामने लाने पर समा का किरदार लायक़ तहसीन। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर का एतराफ़। टीम को शाहबाश। कहा समा की रिपोर्टिंग ने हक़ाइक़ सामने लाने में अहम किरदार अदा किया। समर कैंप्स और चीटिंग माफिया समेत मुतादिद मामलात की कवरेज काबिल तारीफ है। समा की निशानदही, वालिदैन के ताउन और जिले इंतजामिया की मुश्तरका कार्रवाइयों में सैकड़ों गैर रजिस्टर्ड ट्यूशन सेंटर सील किए जा चुके हैं। लाहौर में गैर मुल्की खवातीन के अगवा और मुबैना ज्यादती के केस में अहम पेशरफ्त। मुतासरा खवातीन तिब्बी मुआयने के बाद अपने मुल्क रवाना। दोनों लड़कियों और मुल्जिमान में क्रिप्टो करेंसी में शराकत दारी रही। मजीद सरमायाकारी का झांसा देकर पाकिस्तान बुलाया गया। मुल्जिमान अगवा के बाद $1.5 मिलियन मुनाफा मांगते रहे। बयानात रिकॉर्ड। जेर हिरासत मुल्जिमान 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। पंजाब में इंतजामी ओहदों पर उखाड़ पिछाड़। रावलपिंडी के कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और CPO को हटा दिया गया। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान की भी छुट्टी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को इजाफी चार्ज मिल गया। SNGAD ने तकर्रियों और तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची में एक और बच्ची दरिंदगी का निशाना बन गई। लाइंस एरिया में बच्ची सौदा सलफ लेने आई थी। मुबशर नामी मुल्जिम ने ज्यादती कर डाली। पुलिस सर्जन की रिपोर्ट में तस्दीक हो गई। मुतासरा बच्ची जिना अस्पताल में जेर इलाज। हालत तशवीशनाक। मुकदमा दर्ज। पुलिस ने मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। कराची में घरेलू झगड़े के दौरान गोली चल गई। मियां और बीवी के दरमियान सुलह कराने आई खाला जान बहक। वाकया डिफेंस फेज 5 में पेश आया। 40 साल की हुमैरा की लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। मुलजिम गिरफ्तार। कराची में बल्दिया के करीब ट्रैफिक हादसा। तेज रफ्तार मिनी ट्रक बेकाबू होकर सड़क किनारे ट्रेलर से जा टकराया। ड्राइवर जा बहक। लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। कराची में सानहा गुल प्लाजा की तफ्तीश नामुकम्मल और नाक़िस करार। प्रोसिक्यूशन ने चालान दोबारा पुलिस को वापस कर दिया। ज़राए के मुताबिक जिन गलतियों की निशानदेही की गई थी उनको दूर नहीं किया गया। DIG साउथ ने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए इजलास तलब कर लिया। पेशावर में मुखालिफिन ने खातून वकील को तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुतासरा खातून ने केस की समाअत के दौरान नजरसानी की दरख्वास्त जमा कराई। मुखालिफिन ने गालम गलोच शुरू कर दी। अदालत से निकलते ही हमला कर दिया। वाक़े का मुकदमा दर्ज। CCTV फुटेज सामने आ गई। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमले। अमेरिका ने पाकिस्तान की हिमायत कर दी। अमेरिकी महकमा खारजा की जानिब से पाकिस्तान के हक़ दिफा की तायीद। कहा पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दी से बड़ा नुकसान उठाया। अफगानिस्तान में आम दुश्मनों की पनाहगाहों की आलमी सतह पर बार बार निशानदेही के बावजूद तालिबान रजीम पुश्त पनाही से बाज नहीं आई। अपनी सलामती और अवाम की हिफाजत के लिए पाकिस्तान की कार्रवाइयाँ मुकम्मल तौर पर जायज़ हैं।
ओमान, बरतानिया और फ्रांस का आबनाए हुर्मज में महफूज जहाज रानी पर इत्तफाक। आलमी गुजरगाह में आज़ादाना बहरी आमदोरफ्त यकीनी बनाने पर जोर। आबनाए हुर्मज की सलामती आलमी मईशत के लिए अहम करार। आलमी जहाज रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका कोशिशों का ऐलान। अमरीका का 250वां यौम आज़ादी आज, भरपूर जश्न की तैयारियां। 4 जुलाई 1776 को 13 अमरीकी रियासतों ने बरतानिया से आज़ादी का मुश्तरका एलामिया जारी किया था। बरतानवी नौआबादियात से निकलकर अमरीका 2 सदियों से भी कम वक्त में दुनिया की सबसे बड़ी मईशत बन गया। जापान में शानदार जश्न, ड्रोन आर्ट और आतिशबाजी का मुजाहरा, आसमान जगमगा उठा। अर्जेंटीना को असाब शिकन मुकाबले के बाद प्री क्वार्टर फाइनल का टिकट मिल गया। दिफाई चैंपियन को केप वर्डी ने नाको चने चबवा दिए। राउंड ऑफ 32 में मेसी 11 का आसान हरीफ से तगड़ा मुकाबला। अर्जेंटीना 3-2 से कामयाब। मेसी का मेगा इवेंट में 7वां गोल। वर्ल्ड कप की तारीख में गोल्स की तादाद 20 हो गई। अर्जेंटीना प्री क्वार्टर फाइनल में मिस्र से मुकाबला करेगा। जो जीता वही सिकंदर, सुर्ख लश्कर फैसले की घड़ी में साबित कदम। मोहम्मद सलाह की टीम नॉकआउट की पहली आजमाइश में सुरखरू। मिस्र 92 साल बाद फुटबॉल वर्ल्ड कप प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। राउंड ऑफ 32 में ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टीज पर शिकस्त। मुकर्ररा वक्त तक मुकाबला 1-1 गोल से बराबर। एक्स्ट्रा टाइम में कोई टीम गोल ना कर सकी। पेनल्टीज पर मिस्र ने मिला लूट लिया। 4-2 की बढ़तरी के साथ अगले मरहले में एंट्री दे दी। चेहरों पर मुस्कान, आंखें नम, दीवानगी की कोई हद ना, जज्बात पर काबू। मिस्री खिलाड़ी खुशी से झूम उठे। फाते टीम का दीवाना वार जश्न। मोहम्मद सलाह की आंखें छलक पड़ी। तमाम खिलाड़ी और ऑफिशियल्स मैदान में सजदारेज। हीरोज ने मैदान का चक्कर लगाया। फरिस्तारों की मौज मस्ती। मिस्री टीम को जबरदस्त खराज तहसीन। फाते कप्तान ने अफसरदा ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाकर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की मिसाल कायम कर दी। मिस्र की फीफा वर्ल्ड कप में तारीखी फतह। कोच ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तारीखी कामयाबी फलस्तीनी अवाम के नाम कर दी। गजा में भी खुशियां मनाई गई। और मौसीकी के इश्क में डूबकर शोहरत की बुलंदियां पाने वाले लोग, गुलकार अलन फकीर की आज बरसी। सिंध के शहर जामशोरों में पैदा होने वाले अली बख्श ने सिंधी, पंजाबी, उर्दू और सराइकी समेत कई ज़बानों में आवाज़ का जादू जगाया। 1980 में प्राइड्स ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया।